وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اغتنم خمسا قبل خمس فراغك قبل شغلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. اللهم نسألك فهم الإسلام. اللهم نسألك فهم القرآن. آمین یا رب العالمین. آپ اپنی امت کو سکھاؤ کہ زندگی جینے کا آئیڈیل طریقہ کیا ہے، جو اس انسان کا اس امت کو بنانے کا یعنی ان کی تخلیق کا بیسک مقصد تھا. تو ہم سب کے لیے تا قیامت ایک ہی طریقہ ہے اس زندگی کو جینے کا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور اس کا جو ایک ہمیں یعنی بلو پرنٹ ملتا ہے وہ قرآن میں ہے. یعنی اگر ایک انسان کو ارادہ کرنا ہے اور ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ یہ زندگی گزاروں، تو اس کو قرآن پر نظر رکھنی ہے. تو اس کو وہ سارا جو زندگی کا معمور ہے، زندگی کا طریقہ ہے، وہ قرآن کے فریم ورکس میں فٹ کرنا ہے، اس کے باہر نہیں جانا. جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان خلقہ قرآن، ان کا جو خلق تھا، ان کا جو اخلاق تھے وہ قرآن ہے. یعنی قرآن جو ہے اس کی اگر آپ لیونگ ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے ہر ایک انسان کے لیے ابدی فلاح حاصل کرنے کے لیے، اٹرنل ابورڈ حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ اور خالی ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے قرآن کا فہم. اللہ تعالیٰ کے یعنی بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزارے. اب قرآن کے ساتھ رابطہ بنانے کے کچھ مراحل ہیں، کچھ سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک انسان نے وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی بسر کرے، تو اس کو سٹیجز کے تھرو گزرنا ہے. ان سٹیجز میں جو بنیادی سٹیج ہے وہ ہے قرآن کے ساتھ رابطہ بنانا قرات کے ذریعے. جو ایک بنیادی، جو ایک بیسک سٹیج ہے جس سے ایک انسان اپنا ریلیشن سٹارٹ کرتا ہے قرآن کے ساتھ. یعنی کہ میں اس کو کیسے پڑھوں. خاص طور پر آجمیوں کے لیے، جو نان عربز ہوتے ہیں، جن کو عربی زبان نہیں پتا ہوتی، ان کو نہیں پتا کہ قاف کیسے پڑھنا ہے، کاف کیسے پڑھنا ہے، لام کیسے پڑھنا ہے. تو سب سے بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو، ان آجمیوں کو پہلی چیز ہے یہ قرآت کا جو مرتبہ ہے، یا باقی سارے مسلمانوں کو یہ قرآت کا مرتبہ جو ہے یہ پورا مکمل کرنا ہے. تو اس میں تجوید کے احکام آتے ہیں کہ آپ کس طرح حروفوں کے حق ادا کریں، آپ قاف کو کیسے پڑھے، کاف کو کیسے پڑھے، زبر کو کیسے پڑھے، مد کو کیسے پڑھے. وہ بیسک سٹیج کا حصہ ہے. اور ہمارے سوسائٹی میں اگر آپ غور کریں تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ 80 سال تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کا قرآن جو ہے وہ اس بیسک مرحلے سٹیج 1 پہ ہی اٹکے ہوتے ہیں. ان کا سٹیج 1 درست نہیں ہو پاتا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر جو قرآن پڑھتا بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو 5 منٹ کے لیے سنیں تو اس کو مجھے نہیں لگتا کہ ثواب کا وہ مستحق ہے. یعنی وہ الٹا گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی قرات جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. جب انسان پہلے مرحلے میں فیل ہو جائے، پہلی سٹیج میں فیل ہو جائے، تو یہ بعید ہے، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے سمجھنا کہ وہ سیکنڈ سٹیج میں پاس ہو جائے گا، جو کہ معنی کا سٹیج ہے. کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ پیش زبر یا قاف کاف سے معنی کیا نکل رہا ہے، تغیر کیا ہو رہا ہے، چینج کیا ہو رہا ہے. تو وہ معنی کو نہیں سمجھ پائے گا اور وہ معنی پہ غور و فکر نہیں کر پائے گا، اور اس کی قرات صحیح معنی کو کی حامل نہیں ہوگی. اسی طرح پھر تھرڈ سٹیج تدبر کا یا فائنل سٹیج عمل کی تو بات ہی نہیں ہے. ہو گیا ایک انسان کو سٹیج وائز اپنا جو یعنی رابطہ ہے قرآن کے ساتھ قائم کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا سٹیج جو ہے وہ قرات کا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ قرات کے طور پر کیسے رابطہ قائم کرے، کتنا قرآن پڑھے اور اس کو کتنا ٹھیک کرے، آہستہ آہستہ تجوید کے احکام سیکھے. اسی کاوش میں اسی یعنی
मकसद से हमने ये काविश की थी, ये जो कंपटीशन था मेमक्यू के नाम से, हमने ये मकसद रखा था कि हमारा मकसद बुनियादी ये था कि हम लोगों को कुरान के नजदीक ले आए, ताकि जो लोग कुरान से दूर हैं, जिन्होंने कभी कोई चीज याद नहीं की या थोड़े से सूरे याद किए हैं, या उनका मामूर ऐसा रहता है कि दिन में एक आयत याद होती है, तो हमारे कंपटीशन के जरिए, इस कंपटीशन के जरिए 2 के बजाय वो 4 आयतें याद करे, एक बूस्ट मिल जाए। क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत के जिक्र के बारे में बाद फरमाते हैं सूरह मुतफ्फिफीन में, वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, कंपेटिटर्स जो है वो इस चीज में कंपटीशन करे। जब जन्नत का जिक्र होता है कि उसमें क्या नियामतें अल्लाह ताला ने रखी है, अब्दी फलाह रखी है, इटर्नली प्लेजर्स रखे हैं अल्लाह ताला ने हर किस्म के, तो इसी चीज में एक मुसलमान को चाहिए, एक compete करने को वाले को चाहिए कि वो compete करे, वो एक दूसरे के ऊपर सबकत हासिल करे, तेज तेज बढ़े अल्लाह ताला की तरफ। तो हमारा मकसद यही था कि इस कंपटीशन के जरिए हम लोगों की जो स्पीड है या लोगों का जो राबिता है कुरान के साथ, उसको उसका ये कंपटीशन यानी एक कैटलिस्ट बने। क्योंकि शुरुआत हुई वो 2020 में हुई, पिछले साल जब कोविड लॉकडाउन हुआ था, तो कुछ दोस्त अहबाब आए तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम रमजान में थोड़े से बिजी रहें। चलो क्यों ना, ऑनलाइन वाला निज़ाम तो शुरू हो ही चुका है, एकेडमिकली सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है, तो हम एक ऐसा कुरान का कंपटीशन, या उस टाइम हमारे जहन में पूरा प्रॉपरली एक फॉर्मल कंपटीशन तो नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना था कि 5-10 दोस्तों को जमा करें, उनको कुरान सुनाया जाए या उनको तलकीन की जाए, मोटिवेट किया जाए कि ये पोर्शन आप याद करें। तो कुछ दिन तो हमारे फ्रेंड सर्कल में ये चीज चली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको वुसअत अता की और इवेंचुअली लगभग 40 भाई और 40 बहनें इसमें शामिल हुई, करीबन 80 लोग इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो बिल्कुल एक अनऑफिशियल तरीके से चल रहा था। फिर जब 1 महीना खत्म हुआ तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसको 2 महीने के लिए बढ़ा दीजिए, तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह उनको इससे मोटिवेशन मिल रही थी और मजा आ रहा था काफी। तो उसके बाद 2 महीने के बाद हम लोगों ने, इनफैक्ट उन्होंने 2 महीने का भी बोला था कि इसको और फर्दर 3-4 महीने के लिए कर दीजिए, लेकिन चूंकि उस टाइम ये ऑर्गेनाइज नहीं था तो थोड़ा सा फिर हमें इसको इख्तिताम करना पड़ा। एंड इसमें हमें फिर 4 ग्रुप्स बनाए थे, 4 ग्रुप्स के अंडर वो compete कर रहे थे, तो 4 विनर्स आ गए इसमें, 2 भाइयों में, ब्रदर्स में और 2 सिस्टर्स में। ऑफिशियली हम लोगों ने इस साल 2021 में इसको मेमक्यू के तहत शुरू किया। मेमक्यू यानी मेमोराइज कुरान के तहत इसको हमने ऑफिशियली शुरू किया। कुरान मेमोराइजेशन के लिए सबसे पहली चीज जो है तजवीद। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी मेमोराइजेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी तजवीद बहुत वीक होती है। उससे क्या होता है कि, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई सूरा या कोई सूरे बचपन में याद किए होते जब उन्होंने तजवीद मुकम्मल नहीं की होती है, तो उसमें जो लहन होते हैं, उसमें जो गलतियां होती है, वो उनकी यानी हिफ्स में भी रह जाती है, जिसकी वजह से उनका हिफ्स सही नहीं हो पाता। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने बचपन में कोई सूरा याद किया, फिर जब मैं उनको रिवीजन के लिए बोलता हूँ तो वो गलत तरीके से सुनाते हैं। फिर वो खुद इस चीज के गवाह है, वो मुझे कहते हैं कि अब इस चीज को निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उस गलत चीज को निकालने के लिए एक सही चीज दाखिल करने में, एज कंपेयर टू अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। और खास तौर पर उन बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहला स्टेज है कि आप अपनी तजवीद को मुकम्मल करें, ताकि अभी अगर आप कोई गलत तजवीद के साथ हिफ्स कर रहे हैं, वो आपको रिप्लेस करना मुश्किल है। तो सबसे पहले शुरुआत कर दीजिए तजवीद के साथ। तजवीद में सारी चीजें इंक्लूड होती है, यानी आप हर्फ को कैसे पढ़ें, आप 2 हरूफ के दरमियान डिफरेंस कैसे क्रिएट करें,
आपको कौफ और काफ में डिफरेंस पता होनी चाहिए, आपको ता और ता में डिफरेंस पता होनी चाहिए, आपको ला और दाल में डिफरेंस पता होनी चाहिए, आपको मद की डिफरेंट यानी लेंथ्स में पता होनी चाहिए, और पता होनी चाहिए कहाँ वाजिब है कहाँ वाजिब नहीं है। आपको ये पता होनी चाहिए कि कुरान में कहाँ से पढ़ सकती हूँ, शुरू कर सकती हूँ, और कहाँ से नहीं शुरू कर सकती। आपको ये पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ रुक सकती हूँ कहाँ रुक नहीं सकती। इसीलिए तजवीद के अहकाम लाजिम है आप पे, वाजिब है हर एक मुसलमान पे कि वो जब भी कुरान पढ़े, और उसमें यह भी आता है कि जब भी वो कुरान याद करे तब वो तजवीद के साथ करे। तजवीद के बिना उसका माना भी खराब हो सकता है, उसको सवाब के बजाय गुनाह मिल सकते हैं। इसीलिए बेसिक और एडवांस, या चलो बेसिक ही खाली, अगर एक इंसान बेसिक तक ही महदूद रहे वो भी काफी है, जिसमें बेसिक अहकाम और जो अपरेंट मिस्टेक्स है, लहने जल्ली है, वो अवॉइड हो जाए। तो तजवीद एक बहुत ही बेसिक फन है जिसको आप आराम से 1 महीने में कवर कर सकते हैं। अगर आप इन डेप्थ पढ़े तब कुछ महीने लग सकते हैं अलोंग विद प्रैक्टिस। इस ज़िमन में हमारा यूट्यूब पे फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दी हुई है, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी वो लिंक शेयर करूंगा। वो अभी करंटली ऑन गोइंग है, चल रहा है वो तो, लेकिन उसके हमने ऑलमोस्ट 21-22 लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, और हर हफ्ते वो 3-3 लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने बेसिक एंड एडवांस्ड सब जो भी इंक्लूड होता है तजवीद में, वो सारा उसमें कवर करना है इंशाल्लाह। तो जो भी बहन चाहती है कि वो अपने तजवीद के कवायद दुरुस्त करे, या नए से सीखे, या प्रैक्टिस करे, उनके लिए ये कोर्स इंशाल्लाह मुफीद रहेगा। उसके बाद दूसरा गोल है, ये दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना गोल सेट करना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना गोल सेट करें। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान पर वाजिब नहीं है कि वो पूरा कुरान हिफ्ज करे, नहीं, हर एक इंसान पर ये वाजिब नहीं है, लेकिन अपनी यानी इस्तेताअत, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, अपनी जिंदगी को देख के आपको डिसाइड करना है। कोई इंसान ऐसा होता है जो टाइम नहीं ढूंढ पाता, वो उसकी जिंदगी इन चीजों में यानी वो ऐसी गुजरती है कि वो नहीं हिफ्ज कर पाता पूरा, या कोई इंसान ऐसा होता है जिसको कैपेबिलिटी नहीं होती, उसको उसकी याददाश्त कमजोर होती, या कोई इंसान ऐसा होता है जिसकी एज ऐसी होती है उसको याद नहीं होता, कोई भी रीजन जिसकी वजह से आप पूरा कुरान हिफ्ज ना करो। तो इंसान को अपना गोल, सबसे पहली चीज है हिफ्ज करने के लिए अपना गोल सेट करना है। गोल में क्वांटिटी भी आती है, टाइम भी आता है, यानी आप कितना क्वांटिटी करना चाहते हो। 5 पारा करना चाहते हो तो अपने आप को महदूद रखो 5 पारा में। आप ये 5 पारा 1 साल में करना चाहते हो या 1 महीने में करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप अपना गोल फ्रेम करें। जब आपने ये पहला स्टेप कवर किया गोल फ्रेम करने का, उसके बाद आप अपना डेली पोर्शन भी फिक्स कर सकती हैं कि यानी अगर मुझे 800 पेजेस 800 दिनों में याद करें तो दैट मीन्स 1 पेज मुझे पर डे करना है। और वो ऐसा नहीं होता कि हर दिन आपको 1 पेज करना है, आपको स्टार्ट करना है कम से। आप 2 आयत से स्टार्ट करो, 1 आयत से स्टार्ट करो, उसको 1 महीने के लिए बिल्डअप करो, जब तक आपको उस 1 आयत पे कंसिस्टेंसी अचीव होगी। उसके बाद आप 2 आयतें करो, उसके बाद आप इसी तरह बढ़ाओ। यही तरीका है हिफ्ज करने का। अगर आपने पहले ही एक ऐसी यानी क्वांटिटी रखी जो आप फॉलो ना कर पाओ तो बहुत जल्दी ही आप छोड़ दोगे। इसीलिए अपनी कैपेबिलिटी, अपना टाइम, अपना सब हिसाब, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मद्देनजर रखें, अपना गोल और अपना डेली पोर्शन सेट करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है टीचर, उस्ताद ढूंढना तजवीद के ये हिफ्ज के बारे में, जिसके अंडर आप हिफ्ज कर सको। अब दूसरा सवाल इसमें आता है कि ये उस्ताद कैसा होना चाहिए, इसमें क्या सिफात होनी चाहिए। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी पॉइंट्स हो, बट ये कुछ चंद पॉइंट मेरे दिमाग में जहन में आ गए तो वो मैंने लिख दिए। सबसे पहली चीज, आप किसी भी फन में जाओ, मैथ पढ़ने जाओ तो उस बंदे को मैथ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो साइंस वो फिजिक्स पढ़ाता है और आप एक्सपेक्ट करो कि वो मैथ्स अच्छे से पढ़ाए, ये बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जब आप हिफ्ज के लिए जा रहे किसी उस्ताद के पास, तो आपको ये चीज देखना है कि वो किरात के बारे में कैसा है या कैसी है, किरात उसकी कैसी है,
तजवीद उसको आती है कि नहीं, किस हद तक आती है, उसकी यानी रेसिटेशन जो है, यानी उसकी तजवीद थेरी है खाली या अप्लाइड है। ऐसा तो नहीं है कि 4-5 साल पहले उसने कहीं तजवीद किसी मदरसे में पढ़ी है, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ी और भूल गई है, या अभी करंटली वो इस चीज को अप्लाई कर पाती है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, क्योंकि आपका और आपके टीचर का जो नाता है वो लगभग कम से कम 4-5 साल तक रहता है, जिस हिसाब से आपका गोल होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है, इनफैक्ट उसके बाद भी। तो इस लॉन्ग टर्म रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले देखना है क्या उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इस रिलेशन के हम बोले कि उसके साथ हम ये रिलेशन एस्टैब्लिश करें। तो मैं बात कर रहा था उस्ताद के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज ये, दूसरे पॉइंट पे हम ये बता रहे थे कि तजवीद के रूल जानना ही काफी नहीं है, एक उस्ताद फ्लुएंट रिसाइटर होना चाहिए, यानी वो इन प्रैक्टिस होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए उस तजवीद को अप्लाई करने की भी। तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इंसान जज्बात में आके इस चीज को नेग्लेक्ट करता है, और खास तौर पर आप सब बहनों के लिए, क्योंकि आपके लिए इधर उधर जाना पॉसिबल नहीं होता इजीली, वो ये है कि आप अपने ऐसे उस्ताद को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके घर के नजदीक होगा या होगी। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले पहले तो बोलते थे कि चलो जी 10-12 किलोमीटर जाएंगे हिफ्स करने के लिए, लेकिन कुछ ही टाइम में और बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो नहीं कर पाते थे, वो छोड़ देते थे। आपको ये चीज भी देखनी है कि जो हिफ्स का सफर है एक लंबा सफर है, इसमें सालों साल लग जाते हैं, उसके बाद रिवीजन होता है, एंड ये आपके टीचर के साथ लंबा नाता है, लंबा रिश्ता है। तो आप एक ऐसे टीचर को सिलेक्ट करें जो आपकी लोकेलिटी में हो, ताकि आपके लिए विंटर में भी जाना आसान हो, समर में भी, रोजे में भी जाना आसान हो, पूरे साल वो इजीली अप्रोचेबल हो, वॉकिंग डिस्टेंस हो या आप 2-4 किलोमीटर मैनेज कर पाए तो ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो आपको टाइम देने के लिए रेडी हो। ऐसा ना हो कि वो बोल रही है कि 15 दिनों में या 1 महीने में एक बार टाइम दूंगी, नहीं, ऐसे हिफ्स नहीं होता। आपको ऐसे टीचर को अप्रोच करना है जो आपको टाइम देने के लिए रेडी है ओकेजनली। अगर डेली तो वो बहुत बेहतर है, अगर डेली नहीं हो पाता तो ऑल्टरनेटली, या अगर वो भी नहीं हो पाता तो हफ्ते में 2 या 3 दिन कम से कम दे, तभी जाके आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज तब आ जाते हैं जब टीचर कंसिस्टेंट नहीं होता, या जब टीचर अप्रोचेबल नहीं होता या इजीली अवेलेबल नहीं होता। आप 4 बार उसके पास जाओ, 4 बार वो अवेलेबल ना हो तो 5वीं बार आप नहीं जाएंगे, और उसकी वजह से आपके जो पर्सनल गोल्स है वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप एक ऐसे टीचर को चुने जो अप्रोचेबल भी हो, अवेलेबल भी हो। नेक्स्ट, हाफिज या हाफिजा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह पहले पॉइंट में भी मैंने बोला कि उस फन में वो माहिर होना चाहिए, इसीलिए हिफ्स भी उसके अंडर होना चाहिए जो हाफिजा हो या हाफिज हो। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी है, क्योंकि हम एक ऐसे ये तो आप अनफॉर्चुनेट बोले कि हमारे साथ एक ऐसा इस टाइम ये ऐसा वक्त चल रहा है या ऐसा माहौल चल रहा है हमारी सोसाइटी में, हमें ज्यादा हाफिज नहीं मिलते, और हाफिजा तो और ही ज्यादा कम है। और उसके बाद ऐसी हाफिजा जो इजीली अप्रोचेबल हो, नजदीक हो, डेली टाइम दे, अच्छा पढ़ती हो, तजवीद आते हो, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है ऐसा मिलना कश्मीर में, वल्लाहु ताला आलम। इसीलिए अगर हाफिजा है भी नहीं लेकिन ऊपर वाले चारों कंडीशंस फुलफिल कर रही है, तजवीद भी अच्छे से उसको आती है, रेसिटेशन उसकी बहुत अच्छी है, अप्लाई कर रही है तजवीद अच्छे से, और रेसिटेशन अच्छी कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों को एक और चीज इशू है, मुझे नहीं पता बाहर वालों का ऐसा है इंक्लिनेशन या नहीं, लेकिन कश्मीरियों का इंक्लिनेशन है आवाज की तरफ। हम आवाज से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि चलो इस कारी की आवाज अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जब टेक्निकली बात करें, जब इल्म हासिल करने की बात करें, तो हमें आवाज पे ध्यान नहीं देना, हमें तजवीद पे ध्यान देना है, क्योंकि आवाज इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, आवाज अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है।
तो आपको आवाज पर ध्यान नहीं देना कि वो कितने अच्छे से, कितनी बेहतरीन आवाज में कुरान रिसाइट कर रही है, नहीं, आपको ये देखना है कि क्या वो तजवीद के रूल्स अप्लाई कर रही है बराबर और टेक्निकली या नहीं। बहुत सारे कारी ऐसे हैं, अगर आप कश्मीर में ही देखें, मशहूर कारी या मशहूर कुर्रा बहुत सारे ऐसे जो मारूफ हैं अपनी किरात के लिए, लेकिन उनको बेसिक तजवीद में गलतियां होती हैं। वो इस वजह से क्योंकि लोगों ने उनको आवाज के बुनियाद पर मारूफ किया है, तजवीद के बुनियाद पर नहीं। इसीलिए आप एक ऐसा उस्ताद चुने जो तजवीद में महारत रखता हो, उसकी आवाज भले ही क्यों एक एवरेज लेवल की हो, लेकिन तजवीद अच्छी हो, अप्लाई कर रही हो अच्छे से, तो उस केस में हम ये बता सकते हैं कि ठीक है, अगर वो हाफिजा नहीं है लेकिन उसको पूरे कुरान पर नजर है, उसको ये चीज पता है कि कहाँ कहाँ कैसे अहकाम तजवीद के अप्लाई होते हैं, किस किस जगह हम स्टार्ट कर सकते हैं, किस किस जगह हम रुक सकते हैं और किस किस जगह रुक नहीं सकते, ये चीज उसे पता हो, नजर हो। अगर वो हाफिजा भी ना हो तब भी जाके आप उसके पास हिफ्स कर सकते हैं, या जो पोर्शन आपको हिफ्स करना आपने गोल रखा है वो पोर्शन आप हिफ्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि जो हिफ्स है वो हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत करनी है। नहीं, ये बहुत ही गलत कंफ्यूजन है। इसमें मेहनत नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी है। पहले दिन जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही आपको आखिरी दिन भी करनी है। इनफैक्ट आखिरी दिन आपको कम मेहनत करनी है एज कंपेयर टू पहले दिन, बिकॉज पहले पहले दिन आपके लिए मुश्किल हो जाता है हिफ्स करना। आप एक नई चीज में दाखिल होते हैं, आपको अल्फाज नए लगते हैं, आपको बोझ जैसा लगता है कि आधा पेज करना है या एक पेज करना है। आगे जाके आपको आदत हो जाती है, आपकी हार्डवर्क अपेरेंटली कम हो जाती है। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ 80% इसमें जो फैक्टर है वो कंसिस्टेंसी का है। यानी अगर मैंने डेली पोर्शन रखा है आधा पेज, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इल्लल मौत, कुछ भी हो जाए, मुझे ये आधा पेज करना ही करना है। जिस तरह इंसान खाता है, पीता है, और उसको कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, वो उसको खाने की एक अर्ज आ जाती है या पानी पीने की अर्ज आ जाती है। इसी तरह आपको आपका गोल, जो आपकी स्ट्रिक्टनेस इस हद की होनी चाहिए कि आपको आधा पेज करना ही करना है दिन का टारगेट। अगर इस हिसाब की आपने स्ट्रिक्टनेस मेंटेन की तो आपके लिए हिफ्स बहुत इजी है, और ये इंशाल्लाह आपको हो जाता है। जब आप 2 महीना कुरान के साथ ताल्लुक रखो कंटिन्यूसली, आपको एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। जिस तरह आप नमाज के पाबंद है, उसी तरह आप हिफ्स के भी पाबंद हो जाएंगे कि कुछ भी हो जाए, मुझे सुबह टाइम मिले, शाम को टाइम मिले, दिन को मिले, कभी भी मिले, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। तो उसी तरह आपको ये कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है, तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब अक्सर अक्सर प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, जो स्टूडेंट्स में जो हिफ्स नहीं कर पाते, उनमें प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की आ जाती है। 4 दिन वो एक पारा करेंगे, उसके बाद वो अगले साल आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक दिन आधा, एक ही आयत क्यों ना फिक्स करो, लेकिन उस एक आयत पर आपको डटे रहना है। उस एक आयत से आपको आधी आयत नहीं करनी है, वो करनी ही करनी है, आपने बेसिक लेवल रखनी है। तो इस हिसाब से आपको अप्रोच करना है। उसके बाद डेली प्लान, 5वां पॉइंट, इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ है। मेरे अपने सफर के दौरान मेरे उस्ताद मुझे कहते थे कि आप मगरिब से पहले याद करो, लेकिन चूंकि वो मदारिस में पढ़े हुए थे, तो मदरसे में क्या होता है कि उनका पूरा टाइम इसी के साथ होता है। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हम लोग बाकी सारी एक्टिविटीज में भी बिजी होते हैं। तो स्पेशली दिन में जो बिजनेस कर रहा है, जो घर संभाल रही है, जो जॉब कर रही है, या अब जो बाकी उलूम पढ़ रही है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए आप कोई भी टाइम अपने कंफर्ट के हिसाब से चुने, लेकिन सिर्फ इतना है कि वो टाइम डिस्टर्बेंसेस से फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हिफ्स करने बैठे तो आपको बुलाया जाए, आपको फोन आए, आपको कहीं और जाना पड़े। नहीं, अगर आप ब्रेक्स दे रहे हैं तो उसमें आपका जो हिफ्स है अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन टाइम इस बारे में ऐसा है जो इंसान फजर के टाइम स्पेंड करता है, फजर के बाद, क्योंकि उस टाइम सब सो जाते हैं, फोन भी नहीं आते, बाकी सारी डिस्टर्बेंसेस नहीं होती, ऑफिस नहीं होता। उस टाइम आप अच्छे से फर्स्ट मेमोराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट मेमोराइजेशन, यानी जब आपको कोई पोर्शन आज दिन का कंप्लीट करना है, आपने नहीं पढ़ा है, वो आपने याद नहीं किया, तो फर्स्ट मेमोराइजेशन आप उस टाइम करें। उसके बाद जो आपको
रिवीजन करना है उसको, आपको चेक करना है कि याद हुआ कि नहीं, या आपको 2-3 बार आप चाहते हैं कि मैं रिवाइज करूं इसको, तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। एक बार आपने फर्स्ट मेमोराइजेशन की, उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप रिवीजन करते जाइए। उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना, सिर्फ आपको कुरान की आयतें पढ़नी है और अपने सामने मोबाइल रखना है, जहां भूल गए एक नजर मारी, फिर से स्टार्ट किया। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपको एक एडिशनल टाइम रिवीजन के लिए नहीं देना। आपके बाकी टाइम के दौरान भी आपका रिवीजन जो है मुकम्मल हो जाएगा और आपको जो सुबह सवेरे आपने याद किया होगा वो पुख्ता हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड, बहुत सारे मेथड्स है, अगर आप गूगल भी करो आप देखोगे कोई बोलता है कि 4 आयतें करो, फिर पीछे चलो, फिर 2 आयतें करो, फिर रिवीजन करो, वगैरह वगैरह। इसमें भी कोई ऐसा पर्टिकुलर यानी मेथड नहीं है ट्राइड एंड टेस्टेड। हर कोई अपना अपना मेथड फॉलो करता है। आप अपने बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन रखते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा। लेकिन मुझे जो चीज अपने एक्सपीरियंस से बेहतर लगी है वो ये है कि जिस पोर्शन को आपको याद करना है उसको पढ़िए एक बार, उसमें देखिए कि उसमें आपको किरात में कहीं डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, पहले वो चीज आप क्लियर करें। 2-4 बार पढ़े, अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी लग रही है और पढ़े। उसके बाद आप समझें उसको, जिसको अरबी नहीं आती तो वो उसका मीनिंग समझे, इंग्लिश में पढ़े, उर्दू में पढ़े, समझे अच्छे से और कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मीनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है, यानी ये जो पैराग्राफ है या ये सेट ऑफ आया जो है, ये किस बारे में बात कर रहा है, इनका रब्त क्या आपस में। 5 आयतें हैं तो 1-2 के साथ कैसे कनेक्ट होती, या कैसे कनेक्ट करूं, 2-3 के साथ कैसे कनेक्ट करूं, जहां टोटली एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसको कहाँ देखूं, उसको रिकॉग्नाइज करूं, कहां से नया कंटेक्स्ट शुरू हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप देखें। अगर तब भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाज औकात ऐसी आयतें होती है जिसका माना आसानी से समझ नहीं आता, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, तो आप कोई भी ब्रीफ तफसीर पढ़ सकते हैं जो आपके आपके लिए कंटेक्स्ट को इजी कर दे। और जब ये सारा कंप्लीट हो गया, जब आपको कंटेक्स्ट समझ आया, माना समझ, आपको पता चली कि अल्लाह ताला इस आयत में, इन आयतों में क्या बोल रहे हैं, तो उसके बाद आप स्टार्ट करें उसकी रेसिटेशन। दोबारा से उस पोर्शन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़े एंड इसी तरह आप उसको हिफ्ज कर सकते हैं, यानी फर्स्ट जो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट मेमोराइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो 7th पॉइंट है कि हिफ्ज सबकॉन्शियस रेसिटेशन है। ठीक है, आइडियल हिफ्ज जो है वो सबकॉन्शियस रेसिटेशन है, यानी आपने याद किया, लेकिन आपने पहली मेथड, जो भी मेथड मैंने बताई, आपने उससे याद किया, माना के तौर पे हो गया। जब भी आप पढ़ रहे हैं उस दिन, तो आप दिमाग में माना रख के पढ़ रहे हैं, आपको भूल रहा है तो आप दिमाग में ला रहे हैं कि अच्छा उस आयत में ऐसा हो रहा है, अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, तो उसके बाद ही आप किरात कर पा रहे हैं। ये आइडियल रेसिटेशन नहीं है, ये बिगिनिंग स्टेज है। ठीक है, आपने बिगिनिंग स्टेज ऐसे कवर किया, आपने माना समझा, आपको समझ आया, आपकी फर्स्ट मेमोराइजेशन हो गई। अब आपको इस पोर्शन को शिफ्ट करना है सबकॉन्शियस मेमोरी में, यानी आपको ध्यान भी नहीं है कि इस आयत का माना क्या है, आपको ध्यान नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। जिस तरह मैं इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल देता हूं, जब हम बच्चे को राइम पढ़ाते हैं, पहले पहले तो चलो ठीक है, उसको माना एक बार बोलेंगे इसमें ये हो रहा है, उसके बाद जब उसको याद कराते हैं, उसको वर्ड्स और ट्यून ऐसे याद कराते हैं कि वो गुनगुनाता रहता है या पढ़ता रहता है, उसको नहीं पता होती या उसको ध्यान नहीं होता पढ़ते टाइम कि वो क्या पढ़ रहा है। तो उससे क्या होता है ना, उसको माइंड को फोकस करने की भी जरूरत नहीं होती है, जो कि एक हाफिज के लिए जरूरी है जब वो पढ़ रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान को पढ़ने के टाइम माना की जरूरत नहीं है या माना पर गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो एक अलग स्टेज है। इस बार यानी इस टाइम हम सिर्फ बात कर रहे हैं मेमोराइजेशन की, हम लोग तदब्बुर या माना या गौर फिक्र की बात नहीं कर रहे। वो एक अलग स्टेज है, वो एक अलग टाइम है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। मैं कह रहा हूं कि जब मिसाल के तौर पर आपने बचपन में सूरह अलहम्दु शरीफ किया होगा या सूरह नास किया होगा, अभी आप टेस्ट कीजिए, अभी आप कोई नोटबुक उठाइए, आप कुछ भी लिखिए, मतलब आप सोचिए कि मुझे ये लिखना है, फॉर एग्जांपल आप कोविड के बारे में लिखिए 4 लाइनें, और एट द सेम टाइम आप सूरह नास पढ़िए, आप देखिए आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको वो एक सबकॉन्शियस मेमोरी में, आप बिल्कुल टोन याद है, आपको वर्ड्स याद है, आपको आप किसी और चीज पे भी फोकस कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई रुकावट नहीं हो रही है। आप यही एक्सपेरिमेंट आप कीजिए, आप यही कुछ भी लिखिए, 5 लाइनें कोविड के बारे में लिखिए और सूरह लुकमान पढ़िए,
جو आपने अभी रिसेंटली इस कंपटीशन में याद किया, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको फोकस करना पड़ेगा कि अच्छा उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, क्योंकि आपने माना से याद किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, या मतलब अल्फाजों के विजुअल उससे याद किया होगा कि विजुअली कहाँ कहाँ वर्ड्स है, इसीलिए आपको फोकस करने की जरूरत है। तो आइडियल हिफ्ज जो है वो है कि आपको इसको शिफ्ट करना है इस तरीके से कि आपको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको अल्फाज जबान पे आ जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे रिवीजन जरूरी है। ये एक बार याद करने से, 2 बार रिवाइज करने से, 4 बार रिवाइज करने से नहीं होता। डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे। आपको 10 रिवीजन भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा बचपन में सूरह नास करते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम उसको बिल्कुल एक फोकस भी नहीं होगा हमारा, हम पढ़ पाते हैं। इसी तरह इसके लिए बहुत सारे रिविजन जरूरी है। जो हमारे को पॉइंट 8 पर लाता है वो ये है कि रिविजन हिफ्स का एक मेजर पार्ट है। हिफ्स करना या आपने जितना गोल रखा है उसको कंप्लीट करना खत्म शुरुआत है, एंड नहीं है। दिस इज नॉट द एंड। कोई समझता है कि मैंने हिफ्स किया अब बस खत्म हो गई, नहीं। अब आपका सफर शुरू हो गया, जब तक आप मरेंगे तब तक आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस चीज को रिवाइज करना है, इसको महफूज करना है। ये भागेगा आपके दिमाग से, आपको बिल्कुल उस ऊंट की तरह इसको बांध के रखना है जो डेजर्ट में खुला छोड़ दी जाए, उसकी तरह आपको इसको बांध के रखना है। और कैसे बांध के रखना है, रिविजन से। आपको देखना है कि ये जो बांधी हुई ऊंट है ये लूज तो नहीं हो गई, इसको मुझे एक और बार रिवाइज करना है, एक और बार रिवाइज करना है। इसी तरीके से आपका जो ये हिस्सा है, जितना भी आपने प्लान किया है, 2, 3, 4 पारे या पूरा कुरान, अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे, तो वो इसी तरह आपका महफूज हो जाएगा। ये कुछ ब्रीफ पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट जो मेरे दिमाग में ऐसे ही जल्दी जल्दी आ गए, तो मैंने जॉट डाउन किए। सारे विनर्स को खास तौर पर हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपका एफर्ट अल्लाह ताला कबूल रखे। उनके अलावा खास तौर पे बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने एफर्ट किया, एक ही पेज, 2 पेज, 4 पेज, जितने भी उन्होंने याद किए हैं इस कंपटीशन के जरिए, अल्लाह ताला आपके जुहूद को कबूल करे और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप उस हिस्से को महफूज रखें। और अल्लाह ताला सब लोगों को तौफीक दे और जज़ाए खैर दे जिन्होंने इस कंपटीशन में मदद की, चाहे माली तौर पे या उसके अलावा किसी भी किस्म की हेल्प की। तो इसी के साथ हम MEMQ 2021 को क्लोज करते हैं।